All right, we've cut across to these pictures coming in from Agra in Uttar Pradesh, where SP Chief Akhilesh Yadav is present. In fact, we are told that this is at the residence of Ramji Lal Suman. We'll of course have one of my colleagues confirm that for us. But you see, there's a lot of chaos. All of this to welcome SP Chief Akhilesh Yadav. This over the brewing controversy of SP MP Ramji Lal Suman and the statement he gave on Rana Sanga. In fact, of course, as a part of the latest where Akhilesh Yadav has always been protecting the SP MP, Mayawati has also targeted the SP for dragging Dalits into the controversy. I believe my colleague is on the ground to take us through. Hey, Manav! Akhilesh Yadav, MP. I believe Pragati is there. Pragati, if you can hear me, please tell us what's happening there. Akhilesh Yadav, of course, surrounded by a lot of his supporters. But where exactly is this? Is it correct that he has come to Ramji Lal Suman's residence? Of course, he stood by the MP, rock solid through this controversy, despite the flack that he's faced, despite the fact that there have been so many protests outside his house, and how he's heard so many sentiments over his statement on Rana Sanga. And it's not just a political attack, but also Mayawati, who's targeted the SP for dragging Dalits into the controversy. SP MP Ramji Lal Suman, who stirred this controversy by calling the Rajput king a traitor. Pragati, can you hear me? All right, not too sure if Pragati is there with us. We'll try and stay on the pictures for a bit to give you a sense of what's happening in Agra. This is Akhilesh Yadav, who's there at the residence of SP MP Ramji Lal Suman. And you see the kind of crowds that have gathered. Twice that there were massive protests, and once that the police also controlled those protests outside SP MP Ramji Lal Suman's residence. And there, SP workers who gathered in huge numbers in a show of strength for Ramji Lal Suman. Pragati, what's happening there? बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले यहाँ पर अंदर एंट्री उन्होंने ली है। उनकी बातचीत अभी MP रामजी लाल सुमन से चल रही है। हमने रामजी लाल सुमन से बात की थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने बयान पर अभी भी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए, जिसका नारा लगातार समाजवादी पार्टी लगाती है, पीडीए का आकर्षण बढ़ा है, लोगों का अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ा है जब से ये मुद्दा उछला है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का यहाँ आना ये बताता है कि विवाद जिंदा रखने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। तभी लगातार जो है, कभी आप देख सकते हैं अभी हाल ही में, क्योंकि 21 मार्च को बयान दिया जाता है, फिर 26 मार्च को यहाँ पर तोड़फोड़ होती है करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से। उसके बाद आपको जानकारी दे दें कि बताया गया है करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि 9 मई को वो एक बार फिर से यहाँ पर दिल्ली में आने वाले हैं। जब हमने इसको लेकर भी उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था, सांसद रामजी लाल सुमन का यही कहना था कि हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन रही बात कार्यकर्ताओं की तो उनमें साफ तौर पर जोश दिखाई दे रहा है। मैं बाहर की तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, मौजूद हैं, टेंट लगाए गए हैं, यहाँ पर हाथों में पोस्टर्स लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। पुलिस की बड़ी
संख्या में टीम यहाँ पर है। बताया जा रहा है 150 से 200 पुलिसकर्मी है, जिसमें अग्निशमन विभाग भी शामिल है, पीएसी की टीम भी है। और क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं तो सिक्योरिटी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट है। अभी जस्ट आप दरवाजा देख सकते हैं, अभी जस्ट अंदर घुसे हुए हैं। बातचीत उन लोगों की चल रही है, क्या बात होगी, क्योंकि बताया जा रहा है थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आज समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद, उनके निवास पर हम मिले। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी भी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मथुरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय मैंने आने का फैसला लिया था, उस समय मैंने यही कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी है वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में परिवार के सदस्यों से मिलने जाना है। अरे यार तू बोला भाई क्या बोल रहा है? इससे पहले भी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामविलास पासवान से मिलने आए थे, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने आपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। बस मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमारे लिए ढाल है।
और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है, वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक। And that's a detailed statement coming in from Akhilesh Yadav. संकल्प लेना। Yadav, who is now displaying that show of strength for SPMG Ramji Lal Suman. He's there at his residence, where he's gone on to say that there was a motive to kill the leader. In fact, in the past, he has supported Ramji Lal Suman to the extent that he's also said that the blame would go on the BJP if anything happens to Ramji Lal Suman.